हेलो। आवाज़ जा रहा है ना? Yes, sir. ओके। देन टुडे नाउ आई स्टार्ट haloalkane and haloarenes. It means organic compound containing halogen. Okay. Okay, sir. Just a second. Organic compound containing halogen. Containing halogen. As we know that I have, it means we have four type of halogens. Okay, the halogens name is fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, this is the four all type of halogens. When carbon is attached with halogen, when carbon is attached with halogen is known as haloalkane, is known as halogen, organic compound containing halogen. Okay, carbon halogen bond, this bond is known as carbon halogen bond. Carbon halogen bond, this is the very important topic of the organic chemistry. In this topic we first see the strength of carbon halogen bond. Strength of carbon halogen bond, where X means halogen. Okay, X is the halogen. Strength of CX bond, carbon halogen bond. As we know that fluorine size is very small. If this is the fluorine, then chlorine is size is bigger and bromine size is more bigger and iodine size is very large. Okay, this is the size of halogens and carbon size is very few large than फ्लोरीन. फ्लोरीन से कार्बन की साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है. इन दोनों के साइज में लगभग सिमिलरिटी देखने को मिलता है लेकिन कंप्लीट सिमिलर नहीं होते हैं. तब इस केस में जब सेम साइज के जब ऑर्बिटल मिलते हैं तब उसका जो स्ट्रेंथ है वह बढ़ जाता है. और एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल है, ब्रोमीन के पास 4p ऑर्बिटल है और आयोडीन के पास 5p ऑर्बिटल है. और कार्बन के पास भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है. तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है यह बॉन्डिंग होता है 2p ओवरलैपिंग का. कार्बन और क्लोरीन के बीच में 2p 3p का ओवरलैपिंग होता है. कार्बन और ब्रोमीन के बीच में 2p और 4p का ओवरलैपिंग होता है. कार्बन और आयोडीन के बीच में 2p और 5p का ओवरलैपिंग होता है. ओके, जिसके कारण से जो इसका बॉन्ड लेंथ है वह डिफरेंट हो जाता है. यहाँ पर अगर मैं देखूँ ओवरलैपिंग हो रहा है तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ ये होगा तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. ये है आपका बॉन्ड लेंथ. और
हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज देन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, देन द ऑर्डर ऑफ, इट मीन्स decreasing order of bond strength is CF is very strong bond, then CCl, then CBr and then CI. This is the order of bond strength. Therefore reactivity order is also follow. This is also the reactivity order. Okay, no, रिएक्टिविटी आर्डर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी उसको मैं थोड़ी देर में देखता हूँ, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तब उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका बॉन्ड का फिजन ज़्यादा हो जाएगा ना। तब इसकी अगर हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो रिएक्टिविटी होता है CI, फिर CBr, फिर CCl एंड देन आफ्टर CF. दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर. ओके, आर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके, नाउ we next topic start in this chapter. This is the introduction of haloalkane and haloarenes, means carbon halogen bond. This is the simple introduction of the carbon halogen bond. Now we start the classification. Our first topic of haloalkane and haloarenes is classification. In this chapter we study the carbon and halogens bond, है ना. Then first our classification is aliphatic halogen compounds. Aliphatic halogen compounds. It means in simple language we can say that haloalkane. In this topic we study the haloalkane. It means acyclic organic compound attached with halogen is known as, it means acyclic, not only acyclic and cyclic both, but not aromatic is known as aliphatic halogen compound. एलिफेटिक में दोनों आ जाएगा, एसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों आ जाएंगे, लेकिन इस केस में बस बेंजीन नहीं होना चाहिए, ठीक है. तब इसके अंदर हम लोग देखते हैं हेलोएल्केन. ए में फर्स्ट नंबर होगा आपका हेलोएल्केन. हेलोएल्केन का आपका एग्जाम्पल हो जाता है, कार्बन से लग जाएगा हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल CH3X, इस टाइप से. इट मीन्स CH3Cl, C2H5Br, CCCI. This type of compound is known as haloalkane. Okay, this type of compound is known as haloalkane. Haloalkane are further classified. In this chapter we see there are many type of classification. First is aliphatic halogen compounds. In this
एलिफेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड में मैंने पहला देखा हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन में हमारा फर्स्ट हो जाएगा आपका, इसके अंदर भी एक होगा हेलो एल्केन में मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। इट मीन्स कंपाउंड हैव ओनली वन हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव ओनली वन हाइड्रोजन, केवल एक ही हाइड्रोजन होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, C2H5F, फ्लोरोएथेन, etc. are the example of monohalogen derivatives. Monohalogen derivatives are further classified in primary एल्किल हाइलाइड। प्राइमरी को हम लोग एक और शब्द से बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। Are you know about 1 degree, 2 degree and 3 degree carbons? Yes. Okay. When any functional group attached with those carbon which have only one carbon also attached is known as alkyl halide. Sorry, is known as primary carbon. Okay, this is the primary carbon. Okay, and if X is halogen, then it is known as 1 degree alkyl halide. Okay, then it is known as 1 degree alkyl halide. For example, हम लोग देख सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड के CH3 CH2Cl, क्लोरोएथेन CH3 CH2Cl, क्लोरोप्रोपेन। Similarly, CH2 CH3 and Cl, just no, 1 second. Similarly, we see that C. This is also the 1 degree alkyl halide. Because halogen is attached that carbon which have only one carbon. Okay, हाइड्रोजन उसी कार्बन से अटैच है जिस कार्बन से केवल एक कार्बन अटैच है। जैसे इस कार्बन से, जिसको मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, इस कार्बन से आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन ये अटैच है, इसलिए क्या कहलाएगा 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड। 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो हमको IUPAC नेम लिखेंगे तब इसको 1 नंबर 2 3 4 2 डाइमेथिल 2 डाइमेथिल नहीं 1 आयोडो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आयोडो 2 डाइमेथाइल and butane. This is the name of this compound. Okay, are you understand? Yes sir. Okay, then we see the next secondary or 2 degree alkyl halide. Secondary or 2 degree alkyl halide. ऐसे हेलो एल्केन
जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन लगा हो उस कार्बन से एक और कार्बन, दो और कार्बन लगे होंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, है ना। उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। यानी कि इस केस में क्या होगा? इस टाइप से यहाँ पर लगा देंगे आयोडीन CH3 H, then this is known as the 2 degree alkyl halide. IUPAC name is 2-iodopropane. Okay. Similarly, next, tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl halide or 3 degree alkyl halide. इसी को हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन लगा है उस कार्बन से 3 और कार्बन लग जाएंगे, तब ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। CCl, ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तब यहाँ पर कार्बन 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 है, तब इस केस में ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तब इसको हम देंगे 1 नंबर 2 3। ओके, ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे। तब एक सेकेंड, नो, IUPAC नेम गलत हो रहा है। हम इसको देंगे 1 2 3 4, है ना। ये सिर्फ ब्रांच होगा, तब इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल 2-क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथाइल 2-क्लोरो एंड ब्यूटेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, this is the first classification on the basis of degree of carbon. On the basis of degree of carbon, haloalkane are 3 types: primary, secondary and tertiary. And this is the classification of monohalogen derivatives. This is the classification of monohalogen derivatives. Now next we see the dihalogen derivatives. Next we see the dihalogen derivatives. Just a second. हाँ, ए के बाद बी नंबर। बी नंबर है आपका डाईहेलोजन डेरिवेटिव्स। That type of halogen, that type of organic compound in which two halogens are attached is known as dihalogen derivatives. ऐसे हैलोजन जिसमें कि 2 या 2 से अधिक हैलोजन्स लगे हों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 हैलोजन सिर्फ लगे हों तब उसको हम लोग बोलते हैं डाईहेलोजन डेरिवेटिव्स। ये फर्दर आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जेमिनल और जेम डाईहाइलाइड। जेमिनल और जेम डाईहाइलाइड्स। ओके, यानी कि इस केस में क्या होता है कि जब एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लग जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेमिनल डाईहाइलाइड। ओके, आर यू अंडरस्टैंड दिस?
फॉर एग्जाम्पल Yes. CH3 CH3 Br Br. What is the name of this compound? Their common name is geminal dibromide. Okay. What is the IUPAC name of this compound? 2-dibromopropane. 2,2-डाइब्रोमो होगा, 2-डाइब्रोमो नहीं, 2,2-डाइब्रोमो, 1 2 3, 2 बार ब्रोमीन है तो दोनों बार के लिए हो जाएगा 2,2 डाइब्रोमो एंड प्रोपेन। सिमिलरली ये भी क्या है, जिम्नल है। जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स लग जाए तब उसको हम लोग बोलते हैं जिम्नल डाइहैलाइड। तो इस कार्बन से 2 हमारे पास हाइड्रोजन लगे हैं तब इसको हम बोलेंगे जिम्नल डाइहैलाइड। इसका नाम हो जाएगा 1,1-डाइआइडोएथेन। यहाँ पर नंबरिंग करना जरूरी है। अगर सिर्फ हमारे पास होता CH3 CH2I तब इस केस में हमारा नाम होता आइडोएथेन, इस केस में नाम होता आइडोएथेन। लेकिन जब हमारे पास एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे तब हमको उसका नंबर लिखना पड़ेगा 1,1-डाइआइडोएथेन, इसका नाम हो जाएगा। ओके। इसके पीछे कारण यह है कि ये इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन हो सकता है और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा। तब जब इस कार्बन पर हाइड्रोजन करेंगे तब ये क्या हो जाएगा CH2 CH2I और I, तब इसका नाम बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1,2-डाइआइडो और एथेन हो जाएगा इसका नाम। और ये क्या है, ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड टाइप है, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का सेकंड टाइप है जिसका नाम है क्या, विसिनल और विस डाइहैलाइड्स। विसिनल और विस डाइहैलाइड्स यानी कि ऐसे हाइड्रोजन्स जिसके अंदर जो हाइड्रोजन्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है वह अगल बगल के कार्बन पर हो। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन पर एक उसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन हो जाए तब इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल कंपाउंड, है ना, विसिनल डाइहैलाइड। जैसे इसका कॉमन नेम होता है विसिनल डाइहैलाइड्स और इसका कॉमन नेम ये हो गया या फिर इसको बोल सकते हैं एथिलीन डाइहैलाइड और इसका IUPAC नेम होता है 1,2-डाइक्लोरो और एथेन। 1,2-डाइक्लोरो एथेन इसका IUPAC नेम हो जाता है। इसी प्रकार से अदर एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि C यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। ओके, इसका नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 एंड 3 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1,2-डाइक्लोरो और प्रोपेन, इसको हम लोग बोल देंगे। ओके, ये सभी एलिफैटिक कंपाउंड है और ये सभी एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर साइक्लिक नहीं मैं ले रहा हूँ, इसके अंदर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर भी ऐसे ही बनता है। जैसे कि अगर मैं ले लूँ ये साइक्लिक है Cl और Cl, ये आपका कौन सा है, ये आपका विसिनल का एग्जाम्पल है, विसिनल का एग्जाम्पल है और इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों का नाम बताइए। ये है आपका जेमिनल, One two dichlorocyclohexane. 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड। नेक्स्ट का नाम 1,1-dichloro साइक्लोपेंटेन, गुड। cyclopentane. 1,1-डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, सही है। तो इसका ये IUPAC नेम हो जाएगा। ये था आपका जेमिनल हाइलाइड, मतलब विसिनल हाइलाइड। इसी प्रकार से एक आता है आपका, एक और इसमें क्लासिफिकेशन होता है C नंबर का, जिसको मैं देख लेता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा देखिए
जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगता है उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, है ना। आपको पता होगा, मैं यहाँ पर नीचे दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये कार्बन की चेन है, एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर लिए हैं। जैसे कि ये आपका ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगता है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा, उसके बगल वाले बीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं गामा। इसके बारे में आपको पता है ना? आर यू नो अबाउट दिस? Yes. Okay. Then one other also the type of halogens is known as alpha gamma halides. Alpha gamma halides. Okay. And यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जिसको हम लोग, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, इस प्रकार से बोलते हैं। हेलोजेंस के लिए सिर्फ ये अप्लाई होता है, बाकी अदर आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगता है उस कार्बन को छोड़ करके उसके बगल वाले कार्बन को बोला जाता है। लेकिन हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हेलोजन लगता है उसी को अल्फा ले लिया जाता है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड के ऊपर अगर हेलोजन लगा हो तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब इस केस को हम लोग बोलते हैं अल्फा गामा डाइहाइलाइड्स, है ना। अल्फा गामा हाइलाइड्स, या फिर इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल हाइलाइड्स भी। इसी चीज़ को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं टर्मिनल और हाइलाइड्स। ओके, इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, है ना। तब इसको हम लोग, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, Cl, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। ओके, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, या फिर अल्फा गामा डाइहाइलोप्रोपेन। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। जो मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ उसको आप समझ जाना कि यही चीज़ है ना। इसको मैं बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, हमें टाइम को सेव करके रखना है। ये था आपका क्लासिफिकेशन डाइहाइलोजन डेरिवेटिव्स का। इसके बाद आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें ज़्यादा तो नहीं होता है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है आपका ट्राईहाइलोजन डेरिवेटिव्स, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे, एक सेकेंड, ये सी के बाद अब हमारा आता है थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन आता है ट्राईहाइलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राईहाइलोजन डेरिवेटिव्स किसे कहेंगे बताइए? 3 halogens attached to the Very good. That type of organic compound in which 3 halogen are attached is known as trihalogen derivatives, and this is the very important for this chapter, and this is also important in the medicinal field, and this is also important in the our chemistry lab. Okay, and industrial sector is also important. When 3 halogens are attached at one carbon is known as trihalogen derivatives, and their common name is important, is known as haloform. Okay, their common name is haloform. Then please tell this some compounds common name: CHCl3, CHBr3, CHI3। तीनों का कॉमन नेम क्या होगा? आप बता दीजिए, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस 3 टाइप ऑफ कंपाउंड? Chloromethane. क्या? प्लीज स्पीक अगेन। 3 chloromethane. नहीं, ये अलग है। हमने कॉमन नेम पूछा है आपसे, इसका कॉमन नेम होगा क्लोरोफार्म।
जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना, यहाँ पर एक्स लगाया तो मैंने इसका नाम क्या बोला, हेलोफार्म, तब इसका नाम क्लोरोफार्म, इसका नाम ब्रोमोफार्म, ब्रोमोफार्म, और इसका नाम आइडोफार्म, आइडोफार्म। ओके, ये नाम होता है। क्लोरोफार्म आपको केमिस्ट्री के लैब में मिल जाएगा, और हमें जहाँ तक उम्मीद है आप इसको देखे भी होंगे। आपने कभी प्रैक्टिकल किया है केमिस्ट्री के लैब में? आपने कभी केमिस्ट्री के लैब में प्रैक्टिकल किया है कि नहीं? या हाँ, तब आपने क्लोरोफार्म देखा होगा। ये जो है कि एनेस्थेसिया के लिए यूज़ किया जाता है, और भी इसके बहुत सारे यूज है। यहाँ पर एक आपको एग्जांपल, एक आपको कंपाउंड बताता हूँ। ये जब रिएक्शन कर लेता है, क्लोरोफार्म को हमेशा डार्क में रखा जाता है, डार्क में रखा जाता है, और इसको ब्लैक कलर के, ब्लैक और ब्राउन, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ब्लैक और ब्राउन बॉटल में कंप्लीट फिल करके रखा जाता है। जैसे कि कोई भी बॉटल है ना, तो उसके पूरे मुंह तक उसको भर करके रखा जाता है। ब्लैक और ब्राउन बॉटल में कंप्लीटली फिल करके रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो क्लोरोफार्म है, यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और ये बना लेता है COCl, और यह होता है आपका फास्जीन गैस, PHOSGENA, फास्जीन गैस, जो कि क्या है, एक जहर है ना, एक बहुत ही जहरीला गैस है। पहले के समय में पेशेंट का जब ऑपरेशन करना होता था तो उसको एनेस्थेसिया के रूप में क्लोरोफार्म दिया जाता था। क्लोरोफार्म के दे करके उसका एनेस्थेसिया करना होता था। और जो सब वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, चोर वगैरह होते हैं, तो पहले के समय में इसी को, क्लोरोफार्म को सूंघा करके किसी को बेहोश करते थे। बेहोश करना मतलब समझते हो ना, उसको जो है कि बेहोश कर देते थे, फिर उससे किसी भी चीज़ को चुरा लेते थे। तो क्लोरोफार्म को अगर हम, मान लीजिए कि एक हमारे पास बॉटल है इस प्रकार से, माई आर्ट इज़ वेरी वेरी बैड, सो इग्नोर एंड प्लीज अंडरस्टैंड द ओनली टॉपिक। ओके, इफ आई फिल द क्लोरोफार्म इन दिस बॉटल, जब हम इस बॉटल में मैं इतना क्लोरोफार्म भरूंगा, तो जो रिमेनिंग स्पेस है, यहाँ पर जो रिमेनिंग स्पेस है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका ऑक्सीजन गैस आ जाएगा ना। तो जब रिमेनिंग स्पेस में ऑक्सीजन गैस आ जाएगा, तब वो ऑक्सीजन के साथ क्लोरोफार्म मिल करके बना लेगा फास्जीन गैस। और ये फास्जीन गैस जो है कि एक पॉइजन होता है, पॉइजन होता है। क्या पता चला कि हमें किसी को एनेस्थेसिया देना है, हमने इसको सूंघाया और ये क्लोरोफार्म बदल चुका है फास्जीन गैस में, तब व्यक्ति को बेहोश होने के बजाय वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, है ना, मर जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए क्लोरोफार्म को हमेशा पूरे मुंह तक, मतलब कि जहाँ तक इसमें कंप्लीटली फिल करके रखते हैं, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन न जा पाए, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और इसको डार्क में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। ओके, ये इसका खास बात है। ये क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आइडोफार्म। हमें इस चैप्टर में इन तीनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में खूब अच्छे से जानना है, और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगभग हर साल आपके नीट में या फिर नीट के लेवल पर आता है क्वेश्चन, तो उसको आपको लगाने भी आना चाहिए। ओके, दिस इज द ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। प्लीज गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, CHCl3। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्लोरोफार्म का IUPAC नेम क्या होगा? 3-chloromethanes। नो 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 हमारे पास इस केस में कितने कार्बन हैं? एक कार्बन है ना, तो एक ही कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, तब इसका नाम हो जाता है 1,1,1 ट्राई क्लोरोमेथेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1,1,1 ट्राई क्लोरोमेथेन। ओके, अब इसी प्रकार से ब्रोमोफार्म और आइडोफार्म का होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन डी नंबर में,
आपका आता है आपका टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन लगे हों, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ओके, जैसे CCl4, ये इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और IUPAC नेम होता है इसका टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका IUPAC नेम होता है टेट्राक्लोरो एंड मीथेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते थे। अब हमारा आता है, ये हम अब तक हमने जो पढ़ा वो था आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बाद हमारे पास आता है बी नंबर में, हमने वहाँ पर एक सेकेंड ऊपर देख लेते हैं नंबर क्या हमने लिखा है। चला गया, पहला नंबर था हमारे पास हेलो एल्केन। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, हेलो एल्कीन। फर्स्ट नंबर हमने देखा हेलो एल्केन, जिसके इतने क्लासिफिकेशन थे। ये आपको सब समझ में आ गया ना कि रिपीट करना पड़ेगा? नो, ओके, अंडरस्टूड। ओके, गुड। अब सेकेंड टॉपिक है हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन और एल्किनिल हाइलाइट्स, एल्किनिल हाइलाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि कम से कम एक ठो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और उससे हाइड्रोजन लगा हो, तब उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस केस को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्कीन, है ना। यहाँ पर ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कीन। यह है आपका एल्कीन और यह है आपका हाइड्रोजन। जब दोनों आपको मिलेंगे एक साथ, तब इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी को हम लोग बोल देंगे हेलो एल्कीन। ओके, दिस इज द हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन में इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो फार्मूला होता है, एल्कीन का पहले फार्मूला क्या होता है? CnH2n, ये फार्मूला होता है एल्कीन का। तब इस केस में H2n में से, यहाँ पर जब 2 N है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये आपका एथीन है। इस केस में अगर हमें हाइड्रोजन लगाना होगा तो क्या करेंगे? CH2 CH और X कर देंगे, यानी कि मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से। तब यह हमारा फार्मूला है एल्कीन का। तब अगर हम लोग हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तब इस केस में क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ हाइड्रोजन से, तब हमारा जनरल फार्मूला हो जाएगा इसका CnH2n -1, यानी कि 2n में से एक घटाएंगे और यहाँ पर X को लिखेंगे, है ना। ये आपका हेलो एल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा? हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, देखो ये है आपका मीथेन। मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं, तब लगा सकता हूं मैं हेलो मीथेन। इस केस में मीथेन का फार्मूला आपका क्या होता था? CN, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता था। तब मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हाइड्रोजन से, तब इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और X हो जाएगा इसका फार्मूला, है ना। इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, इसके 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रकार होते हैं, आप इसको नोट करके लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट।
हालांकि मैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका स्लाइड भेज दूंगा तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। एक होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और X, है ना, और एक होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2X। एक होता है आपका CH डबल बॉन्ड CH CH2 और X, और एक ठो इधर लगा देंगे CH3। इसी प्रकार से लास्ट होता है CH डबल बॉन्ड CH CH2 और X, और यहाँ पर C6H5। ये 5 प्रकार के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं जो ब्लू कलर में लिख रहा हूँ उसका मैं नाम देखता हूँ। जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया है इसका नाम होता है विनाइल, और इसका नाम होता है एलिल। कॉमन नेम मैं बता रहा हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम होता है क्रोटिल, इसका नाम होता है क्रोटिल। और इसी प्रकार से अगर मैं आगे बढ़ूँ, C6H5 मतलब फेनिल ग्रुप है ना, फेनिल आर्बेंजीन, आपको पता है ना? Yes. ओके, इसका नाम हो जाएगा सिनेमिल। जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया है ना उसका मैं नाम बता रहा हूँ, ये होता है। तब इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा विनाइल हैलाइड, इसका एलाइल हैलाइड, इसका क्रोटाइल या फिर क्रोटिल हैलाइड। आपको इसका नाम याद रखना होगा, और इसका नाम सिनेमिल और हैलाइड, है ना। ये आपको इतना चीज़ एकदम दिमाग में अच्छे से, ब्रेन में इसको अपने अच्छे से फिट कर लीजिए। जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएं कि CH2 डबल बॉन्ड CH के बगल में अगर एक हाइड्रोजन हो जाए तब इसका नाम हो जाता है विनाइल हैलाइड। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH के बाद एक और CH2 हो, उसके बाद हाइड्रोजन होगा तो उसका नाम एलाइल हैलाइड। और CH डबल बॉन्ड CH के एक तरफ CH3 और एक तरफ CH2 हो जाए फिर हाइड्रोजन होगा तो इसका नाम होता है क्रोटिल हैलाइड। और इसके बाद सिमिलरली इसी प्रकार से C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 के बाद हाइड्रोजन होगा तो इसका नाम होगा सिनेमिल हैलाइड। ओके, कभी भूलोगे नहीं ना, भूलना नहीं इसे। चलो, ये था एल्कीन के अंदर। अब हम लोग देखते हैं सेकंड के बाद थर्ड नंबर टाइप में हैलो एल्काइंस। हमने सबसे पहले देखा हैलो एल्केन, फिर देखा हैलो एल्केन के अंदर बहुत सारे प्रकार के थे। हैलो एल्केन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन था क्या? मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर हमने देखा डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में जेमिनल डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड और अल्फा गामा डाइहैलाइड्स। फिर हमने देखा ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आइडोफार्म देखा। फिर हमने देखा टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के अंतर्गत कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन एक टाइप का कंपाउंड देखा। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा हैलो एल्कीन्स या फिर एल्किनिल हैलाइड्स, सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन में। तो उसके अंदर हमने देखा वेनिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, क्रोटिल हैलाइड और सिनेमिल हैलाइड। इसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं हैलो एल्काइंस। हैलो एल्काइंस, हैलो एल्काइंस आर एल्किनिल हैलाइड्स, एल्किनिल हैलाइड्स, है ना। इसके बारे में हमें देखना है। बस नाम देख करके ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है ना। तो जब CH ट्रिपल बॉन्ड C के बगल में एक हाइड्रोजन लग जाए तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हैलो एल्काइन। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलेंगे हैलो एल्काइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथाइन। IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो और एथाइन, इसका काम IUPAC नेम। और कॉमन नेम क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH का कॉमन नेम बताओ क्या होता है? What is the common name of this?
Acetylene. हाँ, वेरी गुड। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। व्हाट इज द फेज ऑफ दिस गैस? सॉलिड, लिक्विड और गैस? मैंने तो बता ही दिया एसिटिलीन इज ए गैस। ओके, अब देखिए, हमको एसिटिलीन का जनरल फार्मूला पता है, यानी कि एल्काइन का जनरल फार्मूला हमको पता है CnH2n-2। ये आपका क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है। तो जैसे कि अगर हमें 2 कार्बन होगा तब C2H2, ये हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला। अब हम जब बना रहे हैं हेलो एल्काइन, उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ हेलोजन से। तब उस केस में यहाँ पर H2n-2 का जो नंबर है उसमें से एक और संख्या घटाएंगे, एक और नंबर घटाएंगे और वहाँ पर लगा देंगे हेलोजन। तब ये हो जाएगा CnH2n-3 and X। दिस इज द फार्मूला ऑफ हेलो एल्काइन। यह फार्मूला हो जाता है किसका? हेलो एल्काइन का फार्मूला हो जाता है। तब इसका कॉमन IUPAC नेम तो क्लोरोएथाइन होगा और कॉमन नेम इसका हो जाएगा क्लोरोएसिटिलीन। क्लोरोएसिटिलीन। ओके, सिमिलरली CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और Br। ओके, ये है। तब इसका ये भी क्या है आपका? हेलो एल्काइन है। इसका IUPAC नेम 1 2 3, 1 ब्रोमो प्रोप 1 आइन, 1 ब्रोमो प्रोप 1 आइन, YNE आइन। ओके, सिमिलरली C ट्रिपल बॉन्ड C H, फिर CH2 Br। इसका नाम क्या हो जाएगा? अब नंबरिंग किधर से करेंगे? इस साइड से 1 2 3, 3 ब्रोमो प्रोप 1 आइन, है ना? इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 आइन। ओके, अब ये था आपका हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, यानी कि एलिफैटिक हाइड्रोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि है आपका B नंबर। ए नंबर था एलिफैटिक हाइड्रोजन कंपाउंड, यानी कि जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते थे हेलो एल्केन। और जैसे हेलो एल्केन होता है ना, उसी प्रकार से सिंपली सेम वैसे ही साइक्लो एल्केन भी होता है। साइक्लो एल्केन का, साइक्लो एल्कीन का, साइक्लो एल्काइन का भी इसी प्रकार से होगा। तो उसमें हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स। हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ओके। एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड्स यानी कि ऐसे हाइड्रोजन कंपाउंड जिसके अंदर आपका बेंजीन रिंग का एंट्री हो जाए, तब उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड। प्लीज टेल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग? प्लीज टेल। sp2 वेरी गुड, 2 ओके गुड। इसमें आपका हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2 एंड वी नो दैट यू नो द every carbon have one hydrogen atom, okay, then their formula is C6H6. If any one hydrogen is replaced by halogen, then their new formula becomes C6H5X. This is the general formula of aromatic halogen compound and this is known as aryl halide. This is known as aryl halides. जिस प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन को हम लोग क्या बोलते थे? एल्किल हाइलाइड बोलते थे,
हेलो एल्केन को हम लोग एल्किल हैलाइड बोलते थे, उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड बोलेंगे, एरिल हैलाइड्स इसको बोलेंगे, है ना। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हमने देख लिया। अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन लगा दूँ, फिर मैं लगा दूँ क्लोरीन, इसी प्रकार से ब्रोमीन एंड इसी प्रकार से आयोडीन, ओके। तब इसका हम लोग को नाम भी पता होना चाहिए। इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तब इसका नाम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम आयोडोबेंजीन, ओके। देखो आगे, जब यहाँ पर अगर हमारा हाइड्रोजन लगा है, तब ये हमारा हो गया ग्रुप, और ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थो। बगल वाले कार्बन को आर्थो पोजीशन बोलते हैं, ओके। इसको बोलेंगे आर्थो पोजीशन, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, मेटा, और लास्ट में इसको हम लोग बोलेंगे पैरा पोजीशन, ओके। इस चीज़ को भी आपको जानना होगा, अभी इसका हमें यूज दिखेगा। आया समझ में? यस सर। ओके, देन वी सी द अदर एग्जाम्पल्स। ये सभी अब हम लोग जो देखेंगे वो हाइलोबेंजीन रहेगा, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, है ना, एरिल हाइलाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखो आपको मैं बता दूं, जो ये हाइड्रोजन होता है ना, सबसे छोटा फंक्शनल ग्रुप होता है, तब उसके हिसाब से इसका नाम होता है। जैसे कि अगर मैं CH3 के साथ अगर मैं लगा दूं यहाँ I, और मैं एक जगह CH3 के साथ मैं लगा दूं Br, CH3 के साथ मैं लगा दूं यहाँ पर Br, जस्ट सेकेंड, CH3 एंड यहाँ Br एंड लास्ट में CH3 एंड क्लोरीन Cl, तब इसको मैं बोलूँगा आर्थो पोजीशन, इसको मैं बोलूँगा मेटा, और इसको मैं बोलूँगा क्या, पैरा, है ना। और इसका कॉमन नेम आपको पता होगा कि जब बेंजीन के पास अगर CH3 लग जाता है तो इसका कॉमन आईयूपीएसी नेम होता है मेथिल बेंजीन, लेकिन कॉमन नेम होता है इसका टॉलुईन, ओके। इसका कॉमन नेम होता है टॉलुईन। तब जब CH3 और बेंजीन के साथ सेकेंड नंबर पोजीशन पर आयोडीन लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो आयोडोटॉलुईन, आर्थो आयोडोटॉलुईन। और इसका नाम मेटा ब्रोमो, और इसके बाद फिर इसका नाम हो जाएगा टॉलुईन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो टॉलुईन। और इसी प्रकार से पैराक्लोरोटॉलुईन, पैराक्लोरो और टॉलुईन इसका नाम हो जाता है, ओके। आए समझ में? यस। ओके, तब ये था आपका। अच्छा देखो, इसमें हम 2 हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं ना, जैसे कि इसमें I Cl और Br, इसका भी हमें क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ये आपका डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का एरोमेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है। इसको हम लोग बोलेंगे मेटा डाई आयोडोबेंजीन, आर्थो डाई आयोडोबेंजीन, इसका नाम होगा आर्थो डाई आयोडोबेंजीन। और इसका नाम हो जाएगा मेटा डाईक्लोरो बेंजीन, और इसका नाम
पैरा, इसका नाम हो जाएगा पैरा, या फिर पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाई ब्रोमो और बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। या फिर इसका एक और नाम हो सकता है 1,2 डाई आइडोबेंजीन, 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन, है ना। ये नीचे वाला आपका आईयूपीएसी नेम है और ऊपर वाला कॉमन नेम है। ये एक और क्लासिफिकेशन हो गया। सिमिलरली अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर एल्कीन में साइड चेन पर हाइड्रोजन लग जाए, सॉरी बेंजीन रिंग में साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, इसमें अब एक और क्लासिफिकेशन है, हम इसको नंबर वगैरह नहीं देते हैं, डायरेक्ट बताते हैं। साइड चेन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स किसके अंदर? एरिल हैलाइड के अंदर। या फिर इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, देखो ऊपर वाला जब बेंजीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन लग जाए तब उसका नाम होता है एरिल हैलाइड, लेकिन जब बेंजीन के बगल में कार्बन हो और उस कार्बन पर हाइड्रोजन लग जाए तब उसका एक स्पेशल नाम होता है और उसको हम लोग बोलते हैं एरल्किल हैलाइड। बार बार गलती हो जा रहा है, फिर मिट नहीं रहा है। एरल्किल और हाइलाइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं सबसे पहले मैं ये बता दूं, ध्यान से देखना और इसको दिमाग में बैठा लेना। इसका नाम होता है टॉल्यूइन, ओके। अगर मैं एक हाइड्रोजन को किसी भी चीज से रिप्लेस कर दूं तब ये इस प्रकार से दिखेगा और इसका नाम हो जाता है तब उस केस में कॉमन नेम बेंजील। और मैं अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तो बस एक ही हाइड्रोजन होगा, तब इसका नाम हो जाता है बेंजल। और यदि मैं तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं तब इस केस में इसका नाम हो जाता है बेंजो। इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजो। इस चीज़ को याद रखेंगे, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो उसका नाम बेंजील, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बेंजल, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बेंजो, ठीक है। तब इसका हम लोग कॉमन नेम देखते हैं। अब कुछ कंपाउंड लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे आपके साथ हो जाएगा CH2 और Cl, तब इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड। कॉमन नेम मैं बता रहा हूँ, बेंजिल और क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम जब भी देखेंगे तो इसको हम लोग ब्रांच के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में लेंगे, तब इसका नाम हो जाता है आईयूपीएसी नेम 1-क्लोरो, 1-फेनिल, 1-फेनिल और मेथेन। यह इसका कॉमन नेम होता है, सॉरी आईयूपीएसी नेम होता है। सिमिलरली अगर मैं इस प्रकार से कर दूं CH और CH के बाद फिर Cl2 कर, मतलब Br2 कर दूं, यानी कि 2 Br लगा दूं, तब इसका नाम हो जाएगा बेंजल डाइब्रोमाइड, बेंजल और डाइब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं अब इसका कॉमन नेम के आईयूपीएसी नेम के बारे में देखूं तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1-फेनिल, 1-फेनिल, 1,1 डाइब्रोमो, एक सेकेंड, पहले डाइब्रोमो होगा, पहले ब्रोमीन आएगा तब फिर इसके बाद ये आता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिटाते हैं। 1,1, यही तो इसका प्रॉब्लम है, चलो नीचे मैं लिखता हूँ 1,1 डाइब्रोमो, फिर 1-फेनिल, 1-फेनिल और मेथेन, और इसका नाम हो जाएगा मेथेन, ओके। सिमिलरली इसी प्रकार से एक और मैं देखता हूँ, जब तीनों हाइड्रोजन को मैं हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर के रिप्लेस कर सकता है, इसी के द्वारा तब बनता है ना बेंजल डिहाइड बेंजोइक एसिड, है ना, CFF, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजल ट्राइफ्लोराइड या फिर बेंजल फ्लोराइड, बेंजल ट्राइफ्लोराइड, BENZAL, एक सेकेंड, बेंजल तो हो गया ना, बेंजो,
बेंजो, आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा बताना। बेंजो ट्राई फ्लोराइड, बेंजो ट्राइफ्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। वो है आपका बहुत ही इजी, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा क्या लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा बचा हुआ है। एक मिनट रुको, चेक करता हूँ। नहीं, थोड़ा सा ही है। अब अगला आपका क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेस पर? हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हमको क्या करना होगा? इसको क्लासिफाइड करना होगा। तब इस केस में हम देखेंगे तो इस केस में आपका जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वह sp3 वाला भी होता है, sp2 वाला भी होता है। जब कार्बन से अगर हाइड्रोजन लग जाए और उस केस में जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइड हाइलोएल्केन, है ना। जैसे कि आपका सभी हाइलोएल्केन, सभी प्रकार का जो हाइलोएल्केन था वह क्या था? वह आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। ओके, और जो आपका हाइलोएल्कीन था, जो आपका हाइलोएल्कीन था वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वो क्या हो जाएगा? आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और इसके साथ साथ एरिल हाइलाइड भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करूंगा तो ये क्या होगा? sp2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर इसका मैं चेक करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, है ना। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो जाता था। ओके, और इसी प्रकार से आपका एक और होता है, और वो होता है आपका sp हाइब्रिडाइड। वो किस में होता है? हाइलो एल्काइन में। जब आपका हाइलो एल्काइन लिया जाए तब उस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइज्ड और हाइलो एल्केन। आया समझ में? इस प्रकार से हम लोग इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? यस सर। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन जो कि संपन्न हुआ, खत्म हुआ। कल हम लोग देखेंगे इसका IUPAC नेम, और हमें उम्मीद है आपको IUPAC नेम आता होगा। IUPAC नेम, आइसोमर, और इसके बाद देखेंगे लास्ट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये 3 टॉपिक पर हमें कल काम करना है। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो लंबा चलेगा, इसको हमें लंबा चलेगा ही, हमें इसको स्टार्ट कर देना है कल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कल स्टार्ट कर देना है। ओके, आया समझ में? यस सर। तो आपने डीपीपी किया जो मैंने भेजा था कि नहीं? ओके सर। नहीं, डीपीपी हो गया कि नहीं? सॉरी, डीपीपी आपने किया जो मैंने क्वेश्चन भेजा या था? आई डिड। कितना? ऑल क्वेश्चन आर यू क्लियर? यस सर। हाउ मेनी क्वेश्चन इज करेक्ट इन 50? फुल। कंप्लीट क्वेश्चन इज करेक्ट? यस। ओके, वेरी गुड।
देन टुडे आई एम सेंडिंग द डीपीपी इन हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन के ऊपर, है ना। टुडे नाउ आल्सो सेंडिंग द डीपीपी एट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड। ओके, नाउ यू कैन लीव नाउ। Sir, what are the best reference books for chemistry? फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग और फॉर स्टडी? Question solving for board exams. बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। आपके कौन सा बोर्ड है आपका वो बताओ, तो फिर उसके हिसाब से मैं भेजता हूँ। CBSE. ओके, सीबीएसई बोर्ड है, तो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का सभी क्वेश्चंस है, मैं आपको उसका पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है। Okay, sir. उस पीडीएफ से आप सभी क्वेश्चंस लगा जाओ। So can you send for NEET also? यस यस यस, आई एम सेंडिंग यू नीट एंड सीबीएसई क्वेश्चंस बुक, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, नीट में आएंगे, मैं वो सब आपको भेज देता हूँ, ठीक है। Okay, sir. ओके, और कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके, ठीक है, कल 9 बजे ज्वाइन होना। Okay, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।